to AV Academy. My name is Avni Sehgal and I hope अभी तक रिलेशन फंक्शन टॉपिक मैंने जितना भी पढ़ा है सबको अच्छे से समझ आया होगा. यू हैव नो डाउट्स एंड रिलेशन फंक्शन के जो मैंने प्रीवियस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे वो आपसे अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे. थोड़े से और क्वेश्चंस बचे थे. रिलेशन फंक्शन चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा. तो लेट्स डू द रिमेनिंग क्वेश्चन विदाउट एनी डिले. लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's start with our question number 14. So question number 14 says that we have to show that the relation R in set R of real numbers defined as R, where A is greater than equal to B square, is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. तो अभी तो क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कि ये प्रूविंग क्वेश्चन है एंड हमें ये तीनों चीजें बता रखी है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है. बट एग्जाम में हो सकता है कि आपको बोले कि चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो आपको अच्छे से इसको एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को अभी, क्योंकि इट इज नॉट श्योर कि आपको प्रूविंग क्वेश्चन टाइप मिलेगा या यू हैव टू फाइंड इट. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो if I take 1 and -1, okay, let's leave about so if I take my A as 0.5 or any point decimal number, क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं ना, तो if I say I take it as 0.5, then A comma A, where A should be greater than equal to B square. तो 0.5 should be less than equal to 0.25. ठीक है. बट ये चीज जो है वो इससे तो छोटी है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, मीन्स गलत प्रूव हो गया, मीन्स हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. और अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो वो तो सिंपल ही है. आप 1,2 ले लो. तो इफ आई टेक A comma B belongs to R as 1,2, then 1 less than equal to 4 square, sorry 4 कर दिया, 4, this is true. Then 2,1 also belongs to R and this is not true. ठीक है. मतलब 1 is less than equal to 4, दिस इज तो ट्रू है. लेकिन अगर हम इसका सिमेट्रिक रिलेशन करें, मतलब इसको उल्टा कर दे, मीन्स 2,1 कर दे, तो हमारा ये ट्रू नहीं आता. दिस ऑल्सो मीन्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. ओके. तो ट्रांजिटिव रिलेशन पे आते हैं. So let me take my A as 2, B as minus of 2 and C as minus of 1. ठीक है. You can take any number जो इसको मतलब not transitive proof करवाता हो. ठीक है. तो I can write it as 2 comma minus 2 belongs to R and minus 2 comma minus 1 belongs to R. Correct. And according to the relation that is given to us, we can write it as 4 less than equal to 4, which proves correct. And
-2 less than equals to 1, which also proves correct. And for a comma c, if we see, it becomes 2 comma -1 belongs to R. But 4 less than equal to 1 does not prove. It is not true. So this means this is also not a transitive relation. ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ आया है. So let's jump to the question number 15. So question number 15 says, check whether the relation R in R defined by A less than equal to B cube this time is a reflexive, symmetric and or transitive. See, तो ये वाला question ऊपर जैसा ही है, quite similar. I would like you guys to do this question by yourself. So this question will be homework to you all. And let's jump to the question number 16. So question number 16, let's see what it says. It says that show that each of the relation R in set A, where X ranges to 0 to 12 and it is given by A minus B inside the mod, is a multiple of 3, is an equivalence relation, and we have to also find the equivalence class of 1. So let's see what we can do for this question. So number 6. So we will start the answer by proving all the relations. तो सबसे पहले सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करेंगे यहाँ पे. तो सिमेट्रिक का मैंने बताया था तुम्हें वन शॉट क्लास में, और इवन मैंने पिछले क्लास में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराए थे, बट द माइनर चेंजेस वाज कि वहां पे डिविजिबल था लिखा हुआ, इधर मल्टीपल है, एंड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. बस क्या कर दो यहाँ पे, जैसे a minus b equals to 3k है, where k is an integer. So b minus a is also equal to 3 lambda, 3k कर सकते हैं इसको, 3k, where k is integer. This means b comma a also belongs to R. तो ये सिमेट्रिक हो गया. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे तुम? करेक्ट, रिफ्लेक्सिव में तो 0 ही आ जाता है. तो a minus a equals to 0, which is a multiple of 3. So it is a reflexive. And transitive के लिए क्या करोगे? ट्रांजिटिव के लिए a minus b equal to 3k and b minus c is equals to 3 lambda. So where k and lambda belongs to integers, and अगर इसको प्लस माइनस करेंगे we will get a minus c equals to 3 lambda plus minus k, which is a multiple of 3. Correct? This means a comma c also belongs to R. That means this is also transitive. अब equivalence class 1 हमें find out करना है, तो a की जगह हम 1 रखेंगे और b की वैल्यूज ढूंढेंगे, जिससे हमारे इक्वल टू में ये आंसर आए कि वो 3 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब 3 का वो एक मल्टीपल निकले. तो a को अगर हम 1 रखेंगे तो क्या क्या वैल्यूज अंदर डाल सकते हैं कि वो 3 का मल्टीपल बने? 1 minus 4 is 3, 1 minus 7 is 3. तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास of 1 minus 4 is 3, 1 minus 7 is 6, 1 minus 10 is 9, 1 minus nothing. अब इसके अलावा हमारे पास कोई आता नहीं है, तो दिस विल बी आवर इक्विवेलेंस क्लास. ठीक है, तो आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा.
क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, it says let S be the relation on the set R of all real numbers defined by S where a की power 2 plus b की power 2 equals to 1 and we have to prove that it is not an equivalence relation on R. तो यहाँ पे तो आपको सीधा डायरेक्ट दिया हुआ है कि equivalence relation है नहीं, तो ये वाला आई गेस आप सब प्रूव कर सकेंगे. एंड ये वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ. दिस विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर योर ऑल. एंड क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 says relation in Z defined as R where A minus B is greater than equal to 5 and we have to check whether R is reflexive, transitive or symmetric. तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट. तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं. आंसर 18. तो इसमें हम सबसे पहले सिमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं. सिमेट्रिक फंक्शन में देखा जाए तो हमें यहाँ पे वैसे बोला है कि वो हमारा a माइनस बी का जो भी रिजल्ट है वो लेस देन इक्वल टू 5 आना चाहिए. बट व्हाट इफ मैंने a को अपना 10 ले लिया, b को 1 ले लिया, तो सिमेट्रिक तो प्रूव हुआ नहीं. 10 माइनस 1 इज 9 विच इज ग्रेटर देन 5. तो यहाँ पे तो सिमेट्रिक हमारा नॉट प्रूव हो गया, मतलब आया नहीं, रिजेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा सिमेट्रिक. तो हमारे यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं बनेगा. जस्ट टेक सिंपल वैल्यूज इज 9,1 फॉर एग्जाम्पल टू प्रूव इट, मतलब टू रिजेक्ट. ठीक है. रिफ्लेक्सिव में तुम्हारा सेम ही है. रिफ्लेक्सिव में तुम्हारा a माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा विच इज ऑलवेज लेस देन 5. तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा. रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा. a कॉमा a belongs to R, a minus a equals to 0. So, which is less than equal to 5 and hence it is reflexive. And for transitive, you can take such examples like 9, 1. So 9, 1 and 1, 8 and 1, 2. हाँ, 9, 1 and 1, 2 ले लो तुम. तो 9,1 तुम्हारा क्या आता है? 9 minus 1 8 which is greater than 5 and 1,2 तुम्हारा तो वैसे -1 आता है which is less than equal to 5 but 9 minus 2 is 7 which is not less than equal to 5, so it will not be transitive. Just take few examples. 9,1 and 1,2 is example from my side. You can take any other example. whatever you like. तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया. लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 सेज एक्स वाई, हमें x माइनस वाई हमारा इंटीजर है and we have to check R is reflexive, symmetric and transit. तो x माइनस वाई को अगर हम किसी से भी मतलब 1 ले ले, 1 माइनस 2 इट इज एन इंटीजर, 2 माइनस 3 कर ले इट इज एन इंटीजर, तो इट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटीजर. आप किसी भी डिजिट से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो. तो x माइनस वाई आप सिमेट्रिक में करोगे तो y माइनस एक्स भी तुम्हारा इंटीजर ही निकलेगा, दैट इज सिमेट्रिक. x माइनस एक्स करोगे इट इज रिफ्लेक्सिव एंड स्टिल बी एन इंटीजर, द वैल्यू विल बी 0. and x minus y and y minus plus y minus z करोगे तो x minus z आएगा which will also be an integer. तो यहाँ पे तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया. रिलेशन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. तो क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 सेज a plus b is an even and we have to show it is an equivalence. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इस बार हमारा 2 का मल्टीपल आ गया. पिछली बार हमारा 3 का मल्टीपल था, फिर हमारा 5 का डिविजिबल था, 4 का मल्टीपल था एंड सो ऑन. इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए इस पे बेस. तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप मैस अप नहीं करोगे. तो ये वाला भी बहुत सिंपल सा है. बस 2 लैम्डा 2 के वाली चीजें पुट कर देना. रिफ्लेक्सिव तो a माइनस ए हो गया तो 0 विच इज एन इवन. तो ये सारा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करता है. ठीक है. And question number 21, we have to show a minus b plus root 3 is an irrational number and we have to check whether R is symmetric, reflexive or transitive. तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट. तो आंसर
नंबर 21 एंड आंसर नंबर 21 हमें यहाँ पे √3 मतलब ये वाला जो भी हमें रिलेशन दे रखा है, हमें चेक करना सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है कि नहीं, और वो ये रैशनल नंबर हमारा आना चाहिए। तो तुम अगर वो करोगे, रिफ्लेक्सिव फाइंड करोगे, तो a माइनस बी a माइनस a हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड विद √3 विच विल बी एन इरेशनल, तो वो रिफ्लेक्सिव तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है। इश्यू हमारा आता है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे। सिमेट्रिक में व्हाट से माय a इज सॉरी माय b इज √3, तो b √3 है, तो और a को हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं 1, लेट्स से 1, तो 1 माइनस √3 प्लस √3, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड विद एन इंटीजर विच इज इरेशनल नंबर। तो वो इरेशनल नंबर तो प्रूव हुआ नहीं, तो दैट मीन्स हमारा सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक रिलेशन, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे नहीं हुआ। एंड फॉर ट्रांजिटिव, लेट्स सपोज आई से 2, 2 √3 belongs to R and 2 √3, √3 belongs to R. तो 2 माइनस 2 √3 प्लस √3, तो इट इज 2 माइनस √3 irrational, and this will be also 2 √3 which is irrational, but 2 √3 को अगर हम देखें तो 2 माइनस √3 प्लस √3, this will cancel out and we will be left behind with an rational number that will be 2, ठीक है। तो हमारा ट्रांजिटिव भी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन रिजेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल है। ये मैंने पिछली क्लास में एक परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन कराया था, उससे क्वाइट सिमिलर है, बस इसमें यहाँ पे हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल में आप देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में अगर हम देखें, मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। रिफ्लेक्सिव में ये मेरा L मेरी लाइन है, तो इज इट पैरेलल टू इटसेल्फ? Is it parallel to itself or not? Yes, it is parallel to itself. That means this will be reflexive. Symmetric में अगर हम देखें, L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L1, which is completely fine, and both are true. So this will also be symmetric. And for transitive we see L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Is L1 parallel to L3? Yes, L1 is parallel to L3. That means this will also be transitive. तो देखा कितना सिंपल था। आप इसको बताओ क्या, ये वाला जो परपेंडिकुलर एंड पैरेलल वाले क्वेश्चंस हैं रिलेशन फंक्शंस के, उसको सिर्फ डायग्राम से भी आप दिखा सकते हो, तो आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। आपको अननेसेसरी कुछ लिखने की नीड नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़ा थ्योरी, मतलब जो आपके सिंप्लीफाइड जैसे ये रिलेशन फंक्शन के होते हैं, इसमें थ्योरी थोड़ा कम रखना, क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है। थोड़ा अगर आपको थ्योरी बतानी भी है तो थोड़ा साइड में बताना, अपना मेन आंसर के साथ उसको मिक्सअप मत करना, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने 2 वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। एंड आई होप आपको आज की क्लास सबको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए? इज डू यू वांट मी टू टीच डिफरेंशिएबिलिटी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Please like and share my video to your fellow mates and subscribe to my channel, and see you in the next class. Until then, bye bye.